Welcome back to Knowledgeist. Today we have the expert of banking and finance, Mr. Prabhanjan Tripathi, and we are going to clarify your every queries that you ask before us. And let's start with the introduction first. Sir, please tell us about PNB Credit Officer batch. Yes, PNB Credit Officer is always very special for us. This is for the fourth time we are running a PNB Credit Officer batch, and in last all three batches, there was a humongous result produced by Team Knowledgeist, and we are very proud to have people from all walks, even from big four companies. Students are joining because this special post requires MBA Finance degree or CA. This is the first point that we have a what you call tradition, we have a legacy of producing results, so that's why there is a lot of expectation from students to produce result for this batch too. Yes. I am going to answer all the questions that you have collected from our students to ask me on PNB Credit Officer batch. Before that, let me tell everybody that this is the time for revision. Our live classes are scheduled till 30th of April, right? Yes, yes. Post that, there will be only revision session. We are expecting this exam to be held in first or second week of May, and in that regard, test series, Ready Reckoner, everything is released. Some of my special classes are being held. So if you have already gone through the study material and content, please go and study the Ready Reckoner. Yes, please. Questions, please. So, sir, the most common question that why someone, if why some candidate should prefer PNB credit officer as a career? Yes, very good question. Uh, this is not for everybody. Yes. Point number one. This is for all MBA Finance and CA students. Okay. If you see in banking sector, Yes. if somebody wants to join public sector bank, many people wants to join public sector bank. So if you want to join public sector bank, then there is only two routes. One is either you become a clerk or you become a PO. In all these examinations, the competition level is very high. In millions of people are appearing for these exams. Yes, yes. So it is next to impossible to get selected. If you get selected, you are lucky, not talented. Sometimes it is your luck that favors you. Luck because factor maybe luck factor here works because uh, sometimes speed, accuracy, how was the question for the day, whoever is getting failed in this PO and clerk exam, Yes. is not necessarily a bogus person. He might be the best candidate, having the best of knowledge, but could not make it due to it's a bad day for him or her. Because there are so many people appearing for this exam. So now for PNB credit, only 10,000 applications will be there. Last year's 8,000 applications. This year maybe 10,000, not more than that. First level of competition is less. And why you should join PNB as a career option, credit officer as a career option? For an MBA finance or a CA student, there are many job opportunities are there in private sector. Yes, yes. And people are coming to us from KPMG, from EY, from Deloitte, right? From PwC. If you have seen our last success batch, there are many people from these big four companies have joined. Even if whatever package they offer, there is a job stress is inherited with that kind of job in the private sector, and with the advent of AI, the job loss is inevitable. Definitely. The stress is there, the job loss is going to happen, the recession is knocking at the doors, so many people uh, may have to suffer unnecessarily, yeah, even being so talented. Yes, And yes. in private sector, when you grow up in the ladder, when your salary package increases, the problem is bigger, because Yes. sometimes you will be replaced with a person who can be paid Less one than fourth of your salary. So here in a public sector bank, you have an opportunity to serve the country without any stress. So it is a better opportunity. So, how can the appearance see their further future in as a credit officer? Yes, the future path you Yes, saying yes, in yes. banking. Yes. See, when you join as a PO, you are a generalist officer. The promotion path is very rapid. In specialist officer, it was little slower earlier, but now as
the position, there many positions are being vacant. So the specialist officers are also growing in public sector bank in a rapid manner. As you are preparing for a lateral entry kind of job, a specialist kind of officer kind of job, and you are preparing with knowledgeist. Knowledgeist is known for banking lateral entry. Lateral, Means if you yes, are not yes. satisfied, or if you want higher career package, then from scale 1 to scale 2, scale 2 to scale 3, scale 3 to scale 4, even sometimes people from scale 1 to direct scale 3, scale 2 to direct scale 4, career opportunities they are grabbing. So if you know the traits of banking lateral entry, then you can either grow in your current bank, or you can join or switch to some other public sector bank. There are many banks who come up with scale 2, scale 3, scale 4, scale 5 level credit vacancies. So there you can grow. And we also teach for banking promotion exams. So promotion exams in private sector, your promotion happens to be with your rating, how much you satisfy your boss. Yes, yes. These are the external factors. But in public sector bank, you have to qualify a written test, then an interview, then you are through. So on basis of your merit, you can grow to next level with in an each. Okay. सो सर जितने भी हमारा एपियरेंट्स हैं जनरली वो एक तो फ्रेशर्स हैं, अदरवाइज वो प्राइवेट बैंक से बिलोंग करते हैं. सो जनरली उनका एक क्वेरीज ये रहेगा या फिर उनके दिमाग में ये रहेगा कि एग्जैक्टली जो जॉब है क्या, क्रेडिट ऑफिसर का जॉब एक्चुअल में है क्या, उन्हें क्या करना होगा, एक्चुअल में जो बैंक्स है वो एज ए क्रेडिट ऑफिसर क्यों रिक्रूट करते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. एज ए क्रेडिट ऑफिसर आपको लोन प्रपोजल्स जो है उसको पहले अप्राइजल करना होगा. इमीडिएटली आपको सैंक्शनिंग पावर नहीं आएगा, बट उसके बाद आपको दे दिया जाएगा. यू हैव टू सैंक्शन ए लोन फाइल. ठीक है, जो एप्लीकेंट लोन लेना चाहता है बैंक में आइदर क्रेडिट होगा या तो डिपॉजिट होगा. लाइबिलिटीज होता है या फिर एसेट होता है. लाइबिलिटीज में बहुत प्रेशर होता है, आपको सेल्स करना होता है, कस्टमर लाना पड़ता है, तो उसमें प्रेशर रहता है. ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड जॉब रोल नहीं होता है बैंकिंग में. मगर जैसे क्रेडिट, रिस्क, फॉरेक्स, ट्रेजरी, ये सब स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल सोफिस्टिकेटेड होता है, क्योंकि आपको बाहर उतना जाना नहीं पड़ता. पॉइंट नंबर 1, यू डोंट हैव सेल्स टारगेट, सेल्स प्रेशर, जो कि बहुत खतरनाक होता है. सेकंड चीज, आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हो इकोनॉमी में. जैसे पूरा इकोनॉमी हमारा चलता है कि हम किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देंगे, किस तरह से एमएसएमई सेक्टर को देंगे. तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो. इंडिविजुअली भी आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा. लोन एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, आप बैलेंस शीट को देखोगे, बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे, करेंट रेशियो निकालेंगे, आप उसको क्यों लोन देना चाहते हैं या फिर क्यों नहीं देना चाहते हैं. और आपको एक इतना बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक डिसीजन मेकिंग का पावर आपके पास होगा. ये एक सबसे बड़ा चीज है. जब आप बैंक में सेल्स करके कुछ सामान लाते हो, मतलब कुछ एलआई हो या फिर आपके अकाउंट हो, उसमें आपका कोई बड़प्पन उसमें झलकता नहीं है. ठीक है, इसमें आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ. मेरे डिसीजन से, मेरे कलम के एक सिग्नेचर के ऊपर डिपेंड करता है किसी का प्रोफाइल. और लर्निंग बहुत होगा आपको. आप बहुत सारे कस्टमर्स के बैलेंस शीट पढ़ेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स देखेंगे. ठीक है, आप क्वेरी करेंगे, आप सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, बहुत कुछ है. और एक चीज है, जब इसमें ट्रेनिंग बहुत कम दिया जाता है क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट्स अभी से अच्छे से तैयारी करते हैं उनको फर्स्ट आवर में कोई दिक्कत नहीं होता है. क्योंकि एक रॉन्ग क्रेडिट भी आपको गलत जगह पे लैंड कर सकता है. पब्लिक सेक्टर बैंक में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाता है, तो कुछ स्टूडेंट्स डरते हैं वहां पे जाने के बाद. सो सर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं एंड यस दे आर वेरी मच क्यूरियस टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. सो रेणुका पूछ रही है, आई डाउट इन स्कोरिंग एंड आल्सो हैव मल्टीपल क्वेश्चंस दैट आई थिंक सेज आस्किंग अबाउट द स्कोरिंग. मार्किंग किस तरह से रहेगा, किस तरीके से मार्किंग करने से वो ये जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल बैंकिंग डिसाइडर होने वाला है. प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो डिसाइडर होने वाला है. क्यूआरई में आपके क्वालिफाइंग के ऊपर फोकस करिए, पूरा बेसिक लेवल पे फोकस करिए. मॉडरेट टू टॉप लेवल क्वेश्चन को आप स्किप भी करते हो, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. आप प्रोफेशनल बैंकिंग को इसीलिए, प्रोफेशनल नॉलेज को, क्रेडिट मैनेजमेंट को इसीलिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है. एक तो आपका रिटन स्कोर अच्छा रहेगा और इंटरव्यू में क्वेश्चन यहीं से आएंगे. तो फोकस मोर ऑन दी
क्रेडिट पार्ट, जो क्रेडिट के पूरे क्लासेस हैं। रेडी रेकनर आपको सिर्फ रिटेन में क्वालिफाई कराएगा, बट रेडी रेकनर के अलावा जो लॉन्ग लेंथी लेसन्स है विथ आवर एमसीक्यू, पूरा जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू का वाला जो चैप्टर्स हैं, जैसे बैंकर्स हैंडबुक ऑफ क्रेडिट को हमने सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। जो मेरे 68 लेसन्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, स्कोरिंग यहीं पे होगा, ठीक है। सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम श्रद्धा वर्मा। सो श्रद्धा पूछ रही है कि सी joined on Monday and how could she cover the course so fast? यस, देखिए अभी भी समय है, अभी भी नाउ वी हैव रफली 20 days, 20-25 days. The admit card is not yet out. If you just want to crack the written exam, then ready reckoner is more than enough. हमने लास्ट मिनट MCQ 1000 प्लस MCQ दिया है और एक सेट ऑफ MCQ हम तैयारी कर रहे हैं। 2000 MCQ से आपके 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे लेंथी क्वेश्चंस जहाँ पे उनको अंडरस्टैंडिंग के इशू हो रहे हैं, सी कैन स्किप, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। सी शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड विथ वन स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे आपका हमने कुछ कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक्स दिया है, वो लेंथी है, पढ़ना समझना, अगर उनको कैलकुलेशन का बैकग्राउंड नहीं होगा तो सी कैन स्किप इट एंड स्टार्ट रीडिंग द रेडी रेकनर एंड विद अलोंग विथ ओनली द 68 लेसन। 68 लेसन में भी जो मेरा जो प्राइम 68 लेसन है उसमें से भी कुछ रिपीटेड है, मतलब आपके क्लासेस हैं प्लस पीडीएफ है, क्लास प्लस पीडीएफ, क्लास प्लस पीडीएफ, तो ऑडली 42 चैप्टर्स आर देयर, जस्ट यू नीड टू गो थ्रू दैट। आपको 2-4 दिन छुट्टी लेना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप रेडी रेकनर में जॉब करेंगे, 3-4 दिन में आप 10-15 लेसन भी कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। ये कोर्स में हमने तो मैक्सिमम वी आर कवरिंग 95% ऑफ द सिलेबस एंटायरली, ठीक है। यू शुड नॉट कवर 95%। आप अगर 95% मार्क ले आओगे, यू विल बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर। द टॉपर्स आर गोइंग टू स्कोर समवेयर अराउंड 60%, ठीक है। सो whatever you are reading, read it mindfully, and ready reckoner is there to help you or to boost your score in last minute. Okay, so another question ये है कि कंपटीशन कितना ज्यादा रहेगा by MK सिंह? Yes. कंपटीशन कितना रहेगा and what should be the cut off? देखिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन अभी से पहले इसलिए नहीं करना चाहिए, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम है। जब एग्जाम होगा, फाइनल राउंड में जब एग्जाम होगा, वहां पे लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, ठीक है, लेंथी क्वेश्चंस थे कि शॉर्ट क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्या थे, ये सब के ऊपर ही कट ऑफ डिसाइड होता है। अब इसे प्रेडिक्ट करना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है और कुछ नहीं। जैसे पीओ क्लर्क में इसीलिए प्रेडिक्टेबल है क्योंकि वहां पे हर साल एक ही तरह का ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है। वहां पे स्पीड और एक्यूरेसी का मामला होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का मामला है। कितने नॉलेजेबल लोग इस बैच में आए हैं, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ, प्रोफेशनल बैंकिंग में आउट ऑफ 60 10 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स होगा, सो वहां से 10 मार्क कट ऑफ जाता है। बट 10 मार्क स्कोर करने वाले को सिलेक्शन कभी नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा मार्क स्कोर करने होंगे, ठीक है। सो दैट इज द हिंट। बाकी कट ऑफ एग्जाम के बाद डिस्कशन होगा। और लेवल ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन आपका किसी के साथ नहीं है, सिर्फ आप ही के साथ है। कंपटीशन की बात आप पीओ क्लर्क एग्जाम में करिए जहाँ पे मिलियंस लोग आ रहे हैं। यहाँ पे 5-6 हजार लोग एग्जाम हॉल में बैठने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसमें से बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल भी नहीं मिलता क्योंकि ये सब स्पेशलाइज्ड सेगमेंट है। यूट्यूबर्स जो पढ़ाते हैं वो नॉर्मली जनरल बैंकिंग के करंट अफेयर्स में ही ज्यादातर पढ़ाते हैं, तो ये बहुत सारे लोग जो भटक जाएंगे रास्ता, वो उनके पास सही कंटेंट नहीं होगा। जिनके पास होगा वो, अगर आपने जिनके पास अभी तक जो कंटेंट अवेलेबल है, अगर उसमें वो मास्टरी कर लें तो देयर इज ए मोर हाई चांस टू क्वालिफाई, ठीक है। सो रितेश पूछ रहे हैं कि वो 2023 में अपना MBA कंप्लीट किए हैं एंड क्या वो CA के लिए इंटरव्यूज अपियर करें या फिर जो बैंकिंग सेक्टर से इसी के लिए फोकस्ड रहे हैं? नहीं, वो अपना भी कर सकते हैं। बैंकिंग में बहुत अच्छा जॉब तो नहीं बोलता, बट हाँ पब्लिक सेक्टर बैंक का जो जॉब है वो रिलेटिवली बाकी जॉब से, जो प्राइवेट सेक्टर में आपको जो जॉब मिलता है उससे तो फिलहाल बेहतर है, अभी भी बेहतर ही चल रहा है। तो बैंकिंग में अगर वो आना चाहते हैं, CA हैं, तो वो लेटरल एंट्री की भी तैयारी कर सकते हैं, RRB CA की भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे PNB क्रेडिट ऑफिसर जैसा एग्जाम है
उसकी तैयारी कर सकते हैं. नॉट बैड ऑप्शन. और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इज रेडी रखनर इज एनफ टू क्लियर एन एग्जाम? In last 8 to 10 exams which are related to credit, same Ready Reckoner has done wonders. ठीक है, कुछ लोगों, आपने भी खुद सक्सेस स्टोरी देखा होगा, तो कुछ लोगों ने लास्ट 2 दिन में भी रेडी रेकनर पढ़ के एग्जाम को क्रैक किया है. मैं हमेशा बोलता हूँ रेडी रेकनर इज एमसीक्यू बेस्ड. इट इज मोर देन एनफ फॉर क्रैकिंग द रिटन एग्जाम, बट योर एम शुड बी क्रैकिंग द इंटरव्यू टू. फॉर दैट जो थियोरी क्लासेस हमने रखा है उसको भी पढ़ना होगा, क्योंकि थियोरी क्लास में बहुत ज्यादा मेहनत में करता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ. वो बहुत सारे लोग फुल बैच में जो हमारे अवेलेबल हैं वो इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं. अगर सिर्फ इसी को पढ़ के ही क्रैक किया जाता, मतलब सब कुछ हो जाता, तो फिर उसको हम लॉन्च भी क्यों करते, उसको पढ़ाते भी क्यों? ये इसका एसेंस है, क्वेश्चंस है. ठीक है, कुछ हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन में अगर ट्विस्ट करेगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा. बट अगर बहुत ज्यादा ट्विस्ट होता है वहां पे सिर्फ नॉलेज काम आता है. नॉलेज के लिए थ्योरी सेशंस, ठीक है, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इमीडिएट एग्जाम क्रैक करने के लिए रेडी रखना. ओके, तो श्वेता यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड मैक्सिमम अटेम्प्ट टू क्वालिफाई क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग विद इन गिवन टाइम? 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए. 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि 2, 3, 4 मार्क का कट ऑफ जाता है. आपको फोकस प्रोफेशनल नॉलेज में करना चाहिए. इफ यू आर ए नॉलेजिस्ट स्टूडेंट, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करके आने हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको देखा हुआ ही लगेगा. कंटेंट में होगा, रेडी रेकनर में होगा, नहीं तो जो 68 लेसन है उसमें होगा, नहीं तो बैंकर्स हैंडबुक ऑफ क्रेडिट में होगा. सो थैंक यू सर, ये जो पॉडकास्ट है इसमें ज्वाइन करने के लिए. एंड यस, जो भी हमारा व्यूअर्स हैं या फिर जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें बहुत सारी क्वेरीज होगा, सो प्लीज कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू like the video and also share this video to your friends, your family, whoever appearing this PNB credit, and don't forget to subscribe to Knowledgeist. Thank you sir. Thank you everybody.